लगता है studying law is just about shouting, arguing with people, doing chopper every time, and that is the essence of law. So some people will act like they are reading bare act since their birth. लोग मुंह पर स्वीट होंगे पर अंदर से compete कर रहे होंगे. तो हम law पढ़ रहे हैं and we are something different from the rest of the world. Trust me, no other course requires such a 360-degree transformation like the way it happens in law. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Strawberry Tales. I am Devanshi and I am a third year law student, and आज की video will be about a topic जो मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाहती थी on my YouTube channel, and finally मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ which is reality checks of law school, things that no one tells you. इस वीडियो के अंदर आई बी टॉकिंग अबाउट चीज़ें जो मैंने देखा है कि ओपनली लॉ स्कूल के बारे में डिस्कस नहीं होती है, एंड थिंग्स दैट आई फील दैट शुड बी नोन टू एवरी पर्सन हु इज थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग अ लॉ स्कूल, एंड टू एनीवन हु इज ऑलरेडी स्टडिंग इन अ लॉ स्कूल. आई रियली थिंक ये वीडियो is going to be very relatable to you, and maybe you get to know some more things जो आप अपनी कॉलेज लाइफ में या अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर फेस करोगे. Also we hit 407 सब्सक्राइबर्स. ये नंबर कुछ लोगों को काफ़ी छोटा लगेगा, बट believe me, it really means a lot to me, and I'm really very grateful to each one of you who's watching my videos, who's subscribing to my YouTube channel, who are commenting down, who are liking and supporting me. I can't thank you enough. I really feel motivated to make more such videos. I just hope मैं और अच्छी videos बनाऊँ जो आप सब लोगों को काफ़ी help करे. And without any further ado, let's get started to this video. So चलो. Firstly, before anything, I would just like to say that first and the most important thing is outgrow your school version of yourself. This may sound very basic. आप लोग कहोगे दीदी हमें पता है, हम यूनिवर्सिटी में आ गए, हम ऐसे अब हम कॉलेज में आ गए, हमारी कॉलेज लाइफ है, हमें पता है स्कूल जैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली. बट इट इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट दैट इज रिक्वायर्ड विच डजंट हैपन फॉर एवरी पर्सन. आपको लगता है हम कॉलेज में आ गए हैं, बट आपका जो दिमाग है वो स्कूल वाला ही मेंटल लेवल रह जाता है. हियर यू नीड टू हैव अ कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट शिफ्ट. आप जब लॉ पढ़ने आए हो, फर्स्टली यू विल नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. फर्स्ट ईयर में जब आओगे, एवरीथिंग इज वेरी न्यू, बेयर एक्ट्स आर न्यू, लॉ की लैंग्वेज अलग होगी, इट इज समथिंग दैट यू हैवंट स्टार्टेड बिफोर, सो इट्स समथिंग जो आपको नहीं पता होगी. सो एवरीबडी इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल. मे बी समवन नो समथिंग और द अदर, मे बी किसी ने एंट्रेंसेस वगैरह के टाइम में कुछ पढ़ा, बट व्हेन यू स्टडी लॉ फ्रॉम स्क्रैच, अब बेयर एक्ट लॉ, पूरा एक लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. So everybody is currently on the same page. You may be school topper, you may be good in something or the other, you may be teacher's favorite student, but when you enter into a law school, this is a completely new institution. Everything resets here. When you are in school, teachers are running after you. आपकी ये assignment submit नहीं हुई, आपकी notebook check नहीं हुई, आपका ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. When you are in law school, everything is very different from it. Professors won't care as much as your school teachers used to. आपने असाइनमेंट सबमिट की मे बी आपको एक बार बोल दिया जाएगा these roll numbers they haven't submitted. If you don't, you get a 0. Here professors won't care as much as your school teachers do. Not at all. And in fact, you need to be after your professors to get your things done most of the times. In law school, your marks do not solely matter. Apart from your marks, you need to be good in extracurriculars, be good in communication, doing different sorts of internships, getting certificate courses and doing and sorts of stuff. So you need to be good in everything. Marks do not matter solely. Marks के साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो मैटर करती हैं. Like school के अंदर you might be like marks आ रहे हैं, we are something. Here marks is just one thing. और चीजें मिला के बाकी सारी की सारी चीजें equally important है. Next thing which I see happens in law school most of the time is that everyone is pretending to have figured it all out. जिस भी इंसान को आप देखो, they are like, we are doing this internship, we are doing that thing. Some people will act like they are reading bare act since their birth, and some people would be, हमें ये पता है, हमें वो पता है, and they are like, we have figured it all out. हमें सब कुछ पता है, हम ऐसे ऐसे करके ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. But trust me, every person is in a similar situation like you are. They are just pretending to be like, we know everything, we have figured it all out. But reality ऐसी नहीं है. This thing that I'm telling you that people are pretending to be confident, they're pretending to have figured it all out, is because people are scared of looking lost. Every person in law school is just trying out different things, figuring out what to do, what not to do. So law school is full of people who are pretending to have figured it all out while they are actually figuring it out.
सो यू आर नॉट जस्ट बिहाइंड, यू आर जस्ट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड यू आर जस्ट सेइंग कि मुझे नहीं पता है. यू विल फील डाउन अलॉट एक्चुअली. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो. इसका मतलब सिर्फ ये है दैट यू आर इन अ लर्निंग फेज. यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब आप लॉ पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, इट इज इम्पॉसिबल कि आपको एक ही बारी में सब कुछ समझ में आ जाए. अगर आ जाता है वेरी वंडरफुल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. नहीं आ सकता. बेयर एक्ट्स की लैंग्वेज समझना, इन सब चीज़ों से हैबिचुअल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. फर्स्ट ईयर लग ही जाता है. एंड ट्रस्ट मी, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़ने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो आपके लिए इतना नॉर्मल हो जाता है दैट यू आर लाइक इट इज़ वेरी बेसिक. तो वो एक पॉइंट आ जाता है. सो डोंट स्ट्रेस आउट कि ये सब क्या है, हो जाएगा. लॉ इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर कोई भी कभी प्रूव हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है. लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी दैट यू कैन नेवर कॉल योर सेल्फ अ मास्टर ऑफ लॉ. यू आर ऑलवेज अ लर्नर. ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि सारे के सारी चीज़ें कभी एक इंसान को आ ही नहीं सकती. आप हमेशा सीखते रहोगे एंड एवरी टाइम व्हेन यू स्टडी यू विल इम्प्रूव. लोग मुंह पर स्वीट होंगे पर अंदर से कम्पीट कर रहे होंगे. जो लाइन है ना, मैं जब लिख रही थी ना अपनी स्क्रिप्ट में, मुझे इतनी कैची लग रही थी ना, लाइक कितनी मस्त लाइन है ये. बाकी चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट. स्कूल में हर एक पर्सन एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को स्माइल देते हैं, बट साइलेंटली अंदर ही अंदर एवरी पर्सन इज इन अ कंपैरिजन मोड. इट इज देयर. किसने कहाँ कौन सी इंटर्नशिप करी है, किसने कहाँ कौन सी मूड जीती है, कौन किस प्रोफेसर के कितने क्लोज है, ये सारी की सारी चीजें हर एक इंसान कहीं ना कहीं नोटिस करता है. एवरी पर्सन इज comparing one another from each other. कभी कोई बोलेगा that मैं तो कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं कर रहा, अगले दिन पता लग जाएगा कि उसने कहाँ पे कौन सी इंटर्नशिप ज्वाइन करी है उसके लिंक्डइन पे. सो ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है. जस्ट बिलीव इन वन थिंग दैट जो लोग आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहे हैं, ज़रूरी नहीं दैट वो एक्चुअली में आपके लिए जेन्युइन हो और अच्छे हो सकता है अंदर उनके कुछ और खिचड़ी पक रही हो. सो जस्ट हैव अ हैबिट ऑफ सीइंग थिंग्स बिहाइंड द कर्टन. एक चीज़ सीख लो, लॉ में भी एज अ लीगल प्रोफेशनल भी सीखनी पड़ेगी. सो इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा फोकस सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे होना चाहिए. बाकी द पीपल हु आर नॉट गुड, उन्हें फिल्टर आउट करना तुम लोग सीख ही जाओगे. योर इमेज इन लॉ स्कूल बिल्ड्स फास्टर देन यू थिंक. एंड इस चीज़ के ऊपर ना मैं 1000% एग्री करती हूँ. प्रोफेसर्स, आपके सीनियर, आपके बैचमेट्स, दे विल अज्यूम थिंग्स अबाउट यू जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशंस दैट यू पार्टिसिपेट, द टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन, द टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स दैट यू आर डूइंग एंड सो ऑन. इसके बेसिस पे आपके लिए एक परसेप्शन बना ली जाएगी. उसके हिसाब से आपकी तरफ बिहेवियर कोऑर्डिनेट होगा एंड यू वुड बी लाइक ये इंसान मेरे से इतने गंदे तरीके से बात क्यों कर रहा है, पर उन्होंने अपने दिमाग में ना एक परसेप्शन बिठा लिया आपके लिए. उस हिसाब से दे विल बी टॉकिंग टू यू. People in law school can genuinely hate you to the level max without even talking to you. आपके साथ कभी लाइफ में बात भी नहीं होगी उन लोगों की, लेकिन फिर भी वो लोग आपको हेट कर रहे होंगे. एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीजन. ऐसी चीजें भी हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी के साथ गलत तरीके से बात की हो, आपका झगड़ा हुआ तभी लोग आपसे दुश्मनी करेंगे. लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसी आपकी बैक बिचिंग करेंगे, ऐसी आपके बारे में गलत छलत बोलेंगे, जस्ट बिकॉज दे जस्ट डोंट फाइंड अ थिंग गुड अबाउट यू. Another point, this may sound very, very, very basic again, but you are on your own now. And this is something which you will feel, okay, we know, but आप जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं बाहर स्पेशली एडमिशन लेते हो, अब आपके पास कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक फ्रीडम है जो स्कूल के अंदर नहीं होती है. इट इज़ अपॉन यू हाउ यू चैनलाइज दैट टाइम, दैट फ्रीडम. आप उसको एक अच्छे तरीके से भी चैनलाइज कर सकते हो, एक गलत तरीके से भी चैनलाइज कर सकते हो. एंड योर 5 years इन लॉ स्कूल, स्पेशली 5 year वाले, 3 year तो फिर भी एक शॉर्टर ड्यूरेशन की डिग्री है, बट 5 year के अंदर स्पेशली आपका एक बिहेवियर फॉर्मुलेट हो जाता है, आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स फॉर्मुलेट होती है. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आपका ये जो फ्रीडम आपको एक यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती है, बिकॉज इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती जितनी एक स्कूल के अंदर हर एक चीज़ के लिए टाइम्स होते हैं, हर एक चीज़ के लिए वो होता है. यूनिवर्सिटी के अंदर देयर इज रिलैक्सेशन व्हेन यू गो एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल. सो चैनलाइज दोज टाइम, दोज फ्रीडम्स इन अ गुड मैनर. इट इज जस्ट अपॉन योर हैंड. आप इसका कुछ भी कर सकते हो. Nobody will constantly tell you अब क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, जैसे आपके स्कूल टाइम में होता था. Now it's all upon you, so it's a good thing and also a bad thing कि अब आपको सब कुछ खुद से फिगर आउट करना है. तो अब आपके पास फ्रीडम है कि आप फिगर आउट कर सकते हो, और आपके पास ये भी है कि मेरे लिए अब कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब कुछ करना है. So it's a two-way thing. You will question why you took law multiple times and बहुत दफा आपका मन करेगा कि यार छोड़, मैं कोई और डिग्री कर लेता हूँ. ऐसा होगा,
And I'll tell you, it happens because the subjects are heavy, what you are studying is very different. The law field in general is very competitive and it's not easy to make it. And because of these things आपको लगेगा that छोड़ो यार, कोई और डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं. इसी वजह से लॉ के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ना आपको काफी बच्चे दिखेंगे जो ये डिग्री छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज दिस डिग्री इज वेरी चैलेंजिंग mentally. So one thing that I would just like to tell you is that whenever you feel that this degree is not meant for me, maybe I am not good enough, just trust the process. Trust the timing. That is the time when you actually need to pull up your socks and you need to say yourself कि भाई मैं तो कर लूँगा, I'll do it. You need to trust yourself. It is very important. ये जो भी आपको फील हो रहा है यार मैंने लॉ क्यों ली, ये जो भी रिग्रेट है, it is not a regret. It is just a growth pain and you'll have to bear it to actually surpass it and become a good legal professional. When you enter in your first year of law school, people are so delusional. When you enter in your law school for the first year, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ना पता है ऐसा लगता है that हमने लॉ ले ली ना, पता नहीं हमने क्या उखाड़ लिया है. Like we are studying law, like it is something like इसी में लोगों को लगता है हमने पता नहीं कौन सी ट्रॉफी जीत ली हो. लोगों को लगता है studying law is just about shouting, arguing with people, doing chopper every time, and that is the essence of law. Studying law would be like being in Suits. People assume things to be just like the way they see in web series like Suits, and we'll be a next level Harvey Specter, and courtroom drama ऐसे होगा जैसे हमने movies वगैरह में देखा है. Trust me, whatever you see in movies, 99% of them is very opposite to what you see in reality. Reality में कोर्ट के अंदर, trust me, मैं internship कर रही हूँ, everything is very different. ऐसा कुछ नहीं होता जो आप हैमर देखते हो ऑर्डर वाला, वो भी नहीं होता. Just studying in law school is not enough. इसके बाद एक अलग जर्नी है, एक अलग स्ट्रगल है जो इससे कहीं गुना ज्यादा रिग्रेस होने वाली है. So just don't get into this ego phase of हम law पढ़ रहे हैं and we are something different from the rest of the world. ऐसा मत सोचिए. That is something that I would just like to tell you, that इस प्रकार के delusions के अंदर मत पड़िए. लॉ स्कूल के अंदर योर मेंटल हेल्थ विल बी टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स एवरी सेमेस्टर बाय सेमेस्टर. दीज थिंग्स विल बी टेस्टेड. कभी कभार आपको लगेगा ये लॉ स्कूल का टाइम पीरियड भाई इतना लंबा है, यू विल फील लाइक क्विटिंग, बट ट्रस्ट मी, हर एक चीज सरपास हो जाती है. यू विल सर्वाइव लॉ स्कूल. लाइक दिस जर्नी विल नॉट बी ईजी, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल एंड यू विल थ्राइव इन इट. ट्रस्ट मी. एंड ये जो चीजें मैं बोलने जा रही हूँ ना, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. लाइक इसके बारे में दिस इज समथिंग दैट आई वुड से इज the most important point of the video जो मैं अब तक बोल चुकी हूँ इसके अंदर, the balancing act that no one talks about. लॉ स्कूल में ना आपसे हर एक चीज एक्सपेक्ट की जाती है. लाइक आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है that you will have to be very good in academics. आपको हर एक कॉन्सेप्ट like a pro समझ में आ जाना चाहिए. But that is not enough. So you need to be good in internships. You need to do extracurricular activities, cultural events में participate करो, moot courts में participate करो. इसके बाद आपको networking भी करनी है. And if you are an introvert, then it's another problem. आपको extrovert तो बनना ही पड़ेगा. फिर आपको LinkedIn पे भी active रहना है. फिर maybe you have certain expectations from yourself कि मुझे ना ये एक skill सीखनी है. It could be dancing, singing, या आपको fitness पे ध्यान देना है. उसके साथ साथ आपको mental health के लिए भी अपने ऊपर focus करना है कि मेरी mental health बिगड़ना जाए. Then maybe आपको एक side hustle भी start करनी है, या आपको content क्रिएशन करनी है. इट कुड बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बना रखा है. बस एक ही समय पे आपको सब कुछ करना है. इट इज really very exhausting. Trust me, no other course requires such a 360-degree transformation like the way it happens in law. So I would just say that it is very okay to feel mentally stressed, to feel anxious, to feel stretched out, to feel like मुझसे नहीं हो पाएगा, and you will be having mental breakdowns very often. Trust me, this doesn't mean that you're weak. You are just a human being, and it is very normal to feel all these things. Law is the only course that I think which requires everything. Like आपको हर एक चीज में अच्छा होना चाहिए. You need to have everything balanced out. So हर एक चीज को बैलेंस करके चलना है. So that's it for this video. I hope you guys liked it. मैंने अभी अपना ये ना वीडियो का ये जो मैं अभी शूट कर रही हूँ आउटरो, ये मैंने शूट कर लिया था. I just realized मेरी माइक की बैटरी डेड हो गई और कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो. So I'm shooting it like this. So I hope you guys like this video. मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं. I hope किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ रिलेटेबल या कोई ना कोई एडवाइस हेल्पफुल लगी हो. And if you find this video helpful, do like this video, comment down below.
and also subscribe to my YouTube channel for seeing more such content. And please subscribe कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है whenever anyone subscribes, and I really feel motivated to make more such content. So that's it for this video. Till then, bye bye, take care and see you in the next video. Also next video मैं कौन से topic पे बनाऊँ इसके बारे में you can please suggest me in the comment section below. I will be really very happy. So that's it. Till then, bye bye, take care and see you in the next one. Bye bye.